So good evening everyone. Today we are going to discuss your doubts of part test 1 which you have given on last Sunday. Right. That was about on 9th August. Question number 51, your first doubt. The non-integral roots of the equation x to the power 4 minus 3x cube minus 2x square plus 3x plus 1 equal to 0. Now tell me ये कैसे निकाल सकते हैं? Okay. ऐसे रूट्स निकालने जो आपके इंटीजर ना हो तो पहले तो इसके कौन कौन से रूट्स पॉसिबल होंगे वो आपको सोचना पड़ेगा. And this is your quadric polynomial. Yes, एक ऑप्शन आप सोच सकते हो ट्रायल एंड एरर डेफिनेटली. x to the power 4 minus 3x cube minus 2x square plus 3x plus 1 equal to 0. So definitely your option 1 will be a trial and error. ग्राफ नहीं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ कैसे बनाओगे? ओके, तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कर सकते हैं. नेक्स्ट, और उससे आपको बहुत सारी ट्रायल करनी पड़ेंगी. पहले एक ट्रायल से आपका वो क्यूबिक में कन्वर्ट होगा, फिर क्यूबिक का ट्रायल एंड एरर से वो उसमें कन्वर्ट होगा स्क्वायर में, और फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट. ओके, अगर एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सो x टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है और x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है वो सेम है. x क्यूब और x इनका भी कोएफिशिएंट सेम है, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज सेम as well as coefficient of this two is same. Coefficient of x to the power 4 and x to the power 0, coefficient of x cube and x. Okay, and this 2 is as it is. So let us divide this with x square. Right, let us check. Let us divide this with x square and what we are getting. So x to the power 4 by x square will give you x square, plus 1 upon x square will give you 1 upon x square. Right. Minus 3 plus 3, this will give you x, this will give you 1 upon x. So if I'm taking 3 as common, right, or minus 3 I can also take common, right? If I'm taking minus 3 as common, so here I'll be left with x and here I'll be left with minus 1 upon x. Minus 2x square by x square, it is minus 2 equal to 0. Is it clear? Tell me. So this is one observation, right? You can apply trial and error, right, for any general type of polynomial, but for this polynomial we can observe these things, isn't it? Tell me. Okay, and for trial and error, first we will convert x to the power 4 into x cube and then x cube into x square, then you can proceed. Now here if you observe, if this is x minus 1 upon x, this is its square or not? So if I am taking x minus 1 upon x as y, this will be your y square, isn't it? Because, right, x square plus 1 upon x square minus 2, but exactly this is not y square plus 2 I can say, because y is equal to x minus 1 upon x implies y square is equal to x square minus 2 plus 1 upon x square. So this is equal to x square plus 1 upon x square minus 2. Okay, now x square plus 1 upon x square, right? So I have to take y. Okay, so x square plus 1 upon x square is y plus 2. X square plus 1 upon x square is equal to y plus 2, because y equal to x square plus 1 upon x square minus 2. Is it clear? Okay, so by this, no, sorry, y square plus 2, not y plus 2. So if I put all these values here and simplify, so this will be equal to y square plus 2 minus 3y minus 2 equal to 0. So I can get y into y minus 3 equal to 0. So either y equal to 0 or y equal to 3. And what is y? Y is x upon 1 minus x. So x minus 1 upon x is equal to 0 or x minus 1 upon x is equal to 3. Okay, so now you can solve this or not? Okay, क्या यहाँ पे आपको दो रूट्स मिलेंगे. This is nothing but x square minus 1 equal to 0. So x is equal to plus or minus 1. तो जो आप ट्रायल एरर करते, ट्रायल एरर से आपको ये मिलता, ट्रायल एंड एरर से प्लस 1 और माइनस 1, और फिर यहाँ आपको मिलेगा x square minus 1 equal to 3x. So x square minus 3x minus 1 equal to 0.
and from here you can get non-integral roots. So definitely आपको 2 मिलेंगे because your discriminant is not perfect square. Okay, is it clear now? Question number 51. Next, 55, 57, 59. Wait, Manoj, I will scroll up. Okay. Okay, you want to see which portion of question number 51? Tell me. You want to see this? Starting, this is starting. जस्ट हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हम दोनों को डिवाइड कर सकते, मतलब आपके x to the power 4 and x to the power 0 का कोएफिशिएंट सेम है. Coefficient of x to the power 4 and x to the power 0 are same, and like that we can divide. Okay. Now, question number 55. The complex numbers z1, z2, z3 are vertices of an equilateral triangle. If z0 is the circumcenter of the triangle, then z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to. Now, what do you mean by circumcenter? Okay, अगर z0 उसका circumcenter है तो उसके बारे में आपको क्या क्या चीजें पता है? Tell me, क्या क्या चीजें आपको पता है वो आप मुझे फटाफट बताओ. Z1, Z2, Z3 are your vertices of an equilateral triangle. Yes. For orthocenter, your circumcenter equal to centroid is equal to orthocenter, right? आपके सारे के सारे सेंटर सेम हो जाएंगे यार. इन सेंटर टोटल 4 सेंटर्स होते हैं. Z0, oh sorry, Z1, Z2, Z3. And Z0 is circumcenter. So अब सबसे आसान फाइंड करना क्या होता है? Centroid or not is equal to 1/2 Z1 plus Z2 plus Z3. Yes or no? Okay. Because equilateral triangle. Okay. So since Z0 is equal to 1/3 Z1 plus Z2 plus Z3, आपको चाहिए Z1 square plus Z2 square plus Z3 square in terms of Z0 square. So let us apply square on both the sides. So I will get Z0 square is equal to 1/4 Z1 plus Z2 plus Z3 whole square. So therefore 4 Z0 square is equal to Z1 square plus Z2 square plus Z3 square plus 2 times Z1 Z2 plus 2 times Z2 Z3 plus 3 times Z3 Z1, isn't it? Not 3, 2 times Z3 Z1, my mistake. Okay. So what can you tell about this? Okay. Z1 into Z2 को आप क्या बोल सकते हो? Z2 into Z3, Z3 into Z1. If it is equilateral triangle, can you tell me Z1 minus Z2 equal to Z2 minus Z3 equal to Z3 minus Z1? Yes or no? In terms of mode. Okay. Since it is equilateral triangle, mode Z1 minus Z2 equal to mode Z2 minus Z3, because length of each side is same. So if I apply square on everywhere, so mode Z1 minus Z2 whole square equal to mode Z2 minus Z3 whole square equal to mode Z3 minus Z1 whole square. Now what can you write mode Z1 minus Z2 whole square? 0. Why 0? Mode Z square is Z minus Z into Z bar. So Z1 minus Z2
इंटू z1 बार माइनस z2 बार, बट आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं? Or you can apply formula of cos 60 equal to half b square plus c square minus a square divided by 2bc. तो भी थोड़ा वहाँ पे वही होगा, mod z2 minus z3 mod z3 minus z1. Wait, z1 into z2 plus z2 into z3 plus z3 into z1. ओके भाई चलो ठीक है, ये मुझे देखना पड़ेगा. आई विल चेक एंड आई लेट यू नो. ओके अभी इसको स्किप करते हैं. तो ये मैं उसमें ऐड कर दूंगा. फर्स्ट लाइन सर इट्स 1/2 और 1/3. 1/2 और 1/3 आना चाहिए. यस माय मिस्टेक. यस सिंचना राइट. इट शुड बी 1/3. ओके ठीक है. ओके आई विल चेक दिस. अब इसको स्किप करते हैं. नेक्स्ट आफ्टर 55 देन 57. I think this much space will be enough. Okay, can you see this question number 57? Okay. Okay, Harsha is telling that for equilateral triangle z1 square plus z2 square plus z3 square equal to 2 times z1 z2 plus z2 z3 plus z1 z3. But how? What is the reason behind that? अच्छा राकेश ने बताया था. Okay, I'll check. Okay, z1 z2 plus z2 z3 plus z1 z3. ठीक है. I'll check how. Okay. ठीक है. तो अगर आप फिलहाल ये याद रख के आगे बढ़ सकते हैं, 2 टाइम्स z1 z2 plus z2 z3 plus z1 z3, तो ये आप उसकी जगह आप ये रख दोगे तो दिस इज योर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, दैट इज 3 टाइम्स. ओके सो z1 स्क्वायर प्लस नहीं 2 टाइम्स होगा ना, z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर. हाँ 2 इज नॉट देयर. अच्छा 2 इज नॉट देयर, ओनली z1 z2 z3. ओके तो इसके जगह आप ये रख दोगे तो 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स वो 3 टाइम्स हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 9 टाइम्स z0 स्क्वायर बाई 3. 9/3 विल गिव यू 3. राइट. अब मुझे ढूंढना है कि ये कैसे होता है. ओके सो आई विल इंक्लूड दिस. आपका बच्चा है ऑर्डिनेट का वो एनरोल. ओके जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट नोटिंग डाउन दिस इन माय डायरी. तब तक आप भी ये लिख सकते हो. ओके वी कैन प्रूव इट बाय मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स. ओके 2 को मल्टीप्लाई करके फिर एंड देन वी विल गेट होल स्क्वायर ऑन LHS.
2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ओके, मीन्स यू विल गेट दिस। हाँ यस 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 यस, तो उसमें तो आपको ये मिलेगा ना एग्जैक्टली, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर मिलेगा, यस और नो? ये z2 माइनस z3 होल स्क्वायर मिलेगा और z3 माइनस z1 होल स्क्वायर मिलेगा। अच्छा यस यस यस, बिकॉज आपका ये हो जाएगा और वो जीरो हो जाएगा जो आपका बोल रहा था मनोज। ओके यस ओके, तो मोड मोड वाला जीरो नहीं होगा बट ये जीरो होगा, यस। बट z1 माइनस z2 जीरो, इसका मतलब क्या हुआ जियोमेट्रिक फॉर्म? इफ दिस इज z1 इक्वल टू z2, बट ऐसा नहीं हो सकता ना, वही तो सी, मैं उसे if this is z1, if this is z2, so this vector is z1 minus z2, यहाँ के तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा फिर, वही कंफ्यूजन हो रहा था। ओके आई विल चेक दिस। ओके ठीक है, लेट यू नो। तो ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। ओके नाउ solve for x 4 to the power x minus 3 to the power x minus half is equal to 3 to the power x plus half minus 2 to the power 2x minus 1। चलो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, समझो यहाँ पे, so this is 4 to the power x minus 3 to the power x by root 3, this is your 3 to the power x into root 3 minus 2 to the power 2x। अब इसे इधर अगर मैं 4x में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो 2 to the power 2x by 2 एंड 2 to the power 2 को मैं 4x लिख सकता हूँ, मतलब 4 to the power x minus 3 to the power x divided by root 3 and I'll get here root 3 into 3 to the power x minus 2 to the power 2 will give you 4 to the power x and above ahead we'll get half 4 to the power x। Okay, isn't it? Minus 2 to the power 1, yes। So let us combine, आप ये सारी 4 to the power x वाले टर्म को combine कर देते हैं, 3 to the power x वाले टर्म को combine कर देते हैं। So 4 to the power x plus half of 4 to the power x is equal to root 3 3 to the power x plus 3 to the power x by root 3। So if I take 4 to the power x common, 1 plus half 4 to the power x is equal to root 3 plus 1 upon root 3 3 to the power x। So 2 ones are 2 plus 1, 3 by 2 into 4 to the power x is equal to 3 root 3 into root 3 3 3 plus 1 4 4 by root 3 3 to the power x। ओके, 3 वाली टर्म्स एक तरफ, 4 वाली टर्म एक तरफ, सो 4 टू द पावर x बाई 4 और यहाँ पे 2 भी है, इज इक्वल टू 3 टू द पावर x डिवाइड बाई रूट 3 इंटू 3। सो इफ यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे भी आपका एक्चुअली 4 टू द पावर x बाई 1 है और ये 2 इज नथिंग बट 4 टू द पावर हाफ। सो इजंट इट दिस इज योर 4 टू द पावर x माइनस जो डिनोमिनेटर है 4 टू जा 8, इट इज योर 4 टू द पावर 3 बाई 2, राइट? 4 to the power 1 plus half, 2 plus half, so x minus 3 by 2 I can say। Same here, 3 to the power x minus 3 by 2। ओके, अब दोनों दो अलग अलग नंबर्स हैं बट उनके पावर सेम है। ऐसा कब हो सकता है? जब उनके पावर जीरो हो। और अगर ये पता नहीं चल रहा तो आप इनको डिवाइड कर दो, राइट? ये वाली टर्म इधर लेके आओ तो पावर आप एक कॉमन निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू 4 by 3 to the power 0। So therefore x minus 3 by 2 equal to 0. If I take x minus 3 by 2 equal to 0, x is equal to 3 by 2। Is it clear? Students, x is equal to 3 by 2. Question number 57। Please give me some response. Okay.
Now after 57, then 59, 60, 61 continuous. Okay. Now again solve for x. 1 minus 5 to the power x divided by 7 to the power minus x minus 7 to the power x is greater than or equal to 0. Okay. चलो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सी, क्या पहले वेवी कर्व मेथड में अप्लाई कर सकता हूं? समझना, 1 minus 5 to the power x divided by 7 to the power minus x minus 7 to the power x is greater than or equal to 0. ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, पहले वेवी कर्व मेथड अप्लाई करके हमें कुछ मिल जाएगा. सी इफ आई अप्लाई हियर और नॉट. वो अप्लाई करना हो तो 5 to the power x पहले लिखना है. दैट मींस आई एम टेकिंग माइनस कॉमन. राइट, वही सेम माइनस कॉमन हम नीचे भी दे सकते हैं. ओके, so this is 7 to the power x minus 7 to the power minus x is greater than or equal to 0. Now see here, if 5 to the power x minus 1 equal to आप 0 दोगे, so that is 5 to the power x is equal to 1. When it can be 1? When it is 5 to the power 0 implies x is equal to 0. आपको यहाँ से मिलेगा. Next, 7 to the power x minus 7 to the power minus x is equal to आप 0 ले रहे हो. That is 7 to the power x is equal to 7 to the power minus x. That is exactly 1 upon 7 to the power x. Right. नहीं तो आपका बेस सेम है, समझना, बेस सेम है, पूरा रिजल्ट सेम है, तो पावर भी सेम होना चाहिए. x should be equal to minus x. x plus x. 2x is equal to 0 implies x is equal to 0 or not? तो दोनों जगह पे एक ही चीज मिल रही है. यही दिया है ना, 7 to the power minus x minus 7 to the power x, isn't it? ओके, यहाँ से भी x आपको 0 मिलना चाहिए, बट इफ यू सी, राइट, हाँ, 7 to the power minus x minus 7. अच्छा, शायद सॉल्यूशन में उन्होंने 7 to the power x को 7 to the power 1 ले लिया है, राइट? 7 to the power 1 minus 7 to the power minus x is equal to 0. So if you simplify here, 7 is equal to 7 to the power minus x. So minus x is equal to 1, x is equal to minus 1. Okay, isn't it? क्योंकि तभी वो सॉल्यूशन पॉसिबल है. Are you getting my point? ओके, तो हो सकता है शायद क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो. चलो दोनों ये पहले देखते हैं. तो अगर x आपका -1 है, हाँ, और वो आपका 0 है, -1 0. नाउ सी हियर, तो अगर आप वेवी कर्व मेथड यूज कर रहे हो, राइट, 0 से अब आप यूज करोगे, अब समझना है यहाँ पे आपको पॉजिटिव फाइंड करना, राइट. अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू रख रहे हो, नाउ दिस इज योर इनइक्वालिटी. सपोज आई एम पुटिंग 1 और उन्होंने इसको 7 कंसीडर किया. चलो, सो 1 रख रहा हूँ तो 5 to the power 1, 5 minus 1 will give you 4. 7 minus 7 to the power 1, right? 0. X to the power 0, sorry, my mistake. 5 to the power 0, 1 minus 1, ये तो आपको 0 ही देगा. Okay, I have to put plus 1. हाँ, मैं 1 रख रहा था, my mistake, sorry. 5 minus 1 divided by 7 minus 1 by 7. So 5 minus 1 is 4. 7 7 are 49. 49 minus 1, 48 by 7. तो पॉजिटिव ही होगा. So if this is positive, ये आपका नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर तो सभी जगह ऑड ही है.
ओके, बट यहाँ पे आपका 7 माइनस 7 टू द पावर माइनस एक्स है ना, तो क्या उसमें डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं? लेट अस चेक। 0 और -1 के बीच में अगर मैं -0.5 रख रहा हूँ, और वो अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर -2 रख रहा हूँ, इफ आई पुट -2, 5 to the power -2 -1 divided by 7 minus 7 to the power 2. So 1 upon 5 square, 1 upon 25, 1 minus 25 by 25, and 7 minus 49 is negative. तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव देगा। ओके, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। हाँ, पता पॉजिटिव ही मिल रहा है। ओके सर, आफ्टर प्लस हाउ इट इज क्वेश्चन माइनस, मतलब ये ना -1 और 0 के बीच का ना, उसका एक तो कुछ तो रख के देखना ही पड़ेगा। Suppose I am putting 5 to the power minus 0.1 minus 1 divided by 7 minus 7 to the power 0.1. Okay. minus 0.05, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। So 1 upon 5 to the power आपका 0.1 हो जाएगा, 0.5 रखो, 0.5 आपका हाफ हो जाएगा, जो भी रखना हो। ओके, आपको उसकी वैल्यू बस एस्टिमेट करनी है। तो 5 का स्क्वायर रूट आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1/2 आपका 0.5 होता है, 1/2 पॉइंट समथिंग आपका 0.5 से भी कम होगा, 0.5 माइनस 1, तो ये आपको मिलेगा नेगेटिव। 7 माइनस 100 ये आपको मिलेगा पॉजिटिव। हाँ, तो ये तो नेगेटिव ही होगा, इट विल गेट दिस एज नेगेटिव ओनली। ओके, चलो नेक्स्ट। सो दिस इज योर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक्सप्लेन करना है जहाँ पे वो आपका पॉजिटिव हो। सो जस्ट वो -1 to 0 में आपका नेगेटिव है, वो आपको निकाल देना है, और इक्वल टू 0 हो, राइट। इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे होगा वो, व्हेन यू विल पुट x to the power 0, राइट। 0 पे वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 रहा है, तो इसको तो ओपन ही रखना है। ओके, हाँ। सो इक्वल टू 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे वो आपको इंक्लूड करना है। ओके, वो आपको इंक्लूड करना है, 0 को इंक्लूड करना है, -1 को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि वहां पे वो डिफाइन नहीं होगा। सो r माइनस ओपन इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल 0, सॉरी, इंक्लूड करना है, तो सॉरी माय मिस्टेक। तो ये आपका होगा x बिलोंग्स टू r माइनस, राइट। -1 को आपको एक्सक्लूड करना है, तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ इंक्लूडेड, और 0 को वहां पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इंक्लूड करना है, तो यहाँ से आपको माइनस करना पड़ेगा। सो r माइनस क्लोज इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 0, ए 59 ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 61 कंटिन्यूस ही है। ओके, okay, question number 60. Solution of the inequation log, समझना है यहाँ पे, एक मिनट। Now, solution of the inequation log of base 0.5 of log base 2 x square plus 1 by mod x minus 1 less than 0 contains the interval. चलो अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले बेस 0.5, देन आपको दिया है log base 2, आफ्टर दैट इट इज x square plus 1 by mod x minus 1, it is less than 0. Now if, tell me, if this log base 0.5 will go to that side, inequality will change or it will remain as it is. Log base 2
एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई मोड एक्स, एक्स माइनस वन का होल मोड है ना, मोड एक्स माइनस वन। टेल मी बेस लेस देन वन है तो इनइक्वालिटी डेफिनेटली आपकी चेंज करेगी, ग्रेटर देन 0.5 टू द पावर 0 हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 0.5 टू द पावर 0, 0.5 टू द पावर 0 आपका हो जाएगा 1, सो देयरफॉर log base 2 x square plus 1 by mod x minus 1 is greater than 1, so therefore x square plus 1 by mod x minus 1 2 to the power 1, अब वो उस तरफ जा रहा है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगी, यस और नो। ओके चलो, अब मोड x माइनस वन के लिए तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप उसे प्लस x माइनस वन में पहले कर सकते हैं और फिर माइनस ऑफ x माइनस वन, तो उस हिसाब से आपको अलग करना पड़ेगा, बट वो उसके लिए मतलब आपको दो केस लेने पड़ेंगे, राइट। केस वन, केस टू, mod x minus 1 is equal to x minus 1 if x greater than or equal to 1, isn't it, क्योंकि 1 पे वो 0 होगा, x minus 1 greater than or equal to 0, mod x minus 1 is equal to 1 minus x, right, minus of x minus 1, that is 1 minus x if x is less than 1, तो अगर मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, so therefore x square plus 1 whole divided by mod x minus 1, it is x minus 1, it is greater than 2, और यहाँ पे x square plus 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। चलो अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मोड से बाहर निकलने के बाद टेल मी ये x माइनस वन तो आपका पॉजिटिव ही होगा, यस और नो, राइट, क्योंकि सिंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x माइनस वन इज पॉजिटिव, सो x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स x माइनस 2, therefore x square minus 2x plus 1 plus 2 plus 3 is greater than 0, सही है, ओके, x square minus 2 plus 3 greater than 0। चलो अब इसके कैसे सॉल्यूशन निकालोगे, 3 के ऐसे फैक्टर निकालोगे प्लस करके 2 आए, इज इट पॉसिबल, 3 के ऐसे फैक्टर्स की जो प्लस करके 2 आए, नो, तो अब इसके फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 स्क्वायर इज 4 minus 4 a1 c3, so this is 4 minus 4 3s are 12, 4 minus 12 is minus 8, so if discriminant is minus 8, it is having no roots, तो अब यहाँ पे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, चलो इधर सिंस x लेस देन 1 तो 1 माइनस एक्स आपका पॉजिटिव ही होगा, राइट, मोड से बाहर निकलने के बाद तो आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो इन्हें डायरेक्ट आप ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर देन 2 माइनस 2x, सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। चलो अब इसके फैक्टर्स डायरेक्टली 1 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके 2 आए, तो माइनस करके पॉसिबल नहीं, प्लस 1 होता तो डायरेक्ट आ जाता, तो अगेन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस 1, so 4 plus 4 8, so root d is equal to 2 root 2, x is equal to minus b, नहीं इसके रूट्स हैं, ये पॉजिटिव है, माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा, that is 2 root 2, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, by 2a, so minus 1 plus or minus root 2, ओके, चलो अब माइनस 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 आपका कहाँ पे होगा, राइट, रूट 2 इज 1.41, सो रूट 2 माइनस 1 वो आपको देगा 0.41, ओके, सो ये आपकी वैल्यू होगी रूट 2 माइनस 1, माइनस रूट 2 माइनस 1 डेफिनेटली आपका नेगेटिव साइड पे होगा, इधर आपका 0 होगा, ओके, अब यहाँ पे तो आपको ये फाइंड करना है कि कहाँ पे वो पॉजिटिव होगा, तो इसको अगर आप फैक्टर फॉर्म में पहले लिख रहे हो, फिर यहाँ पे भी आप बेबीकॉव मेथड अप्लाई कर सकते हो,
एज फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस रूट टू माइनस वन एंड x माइनस माइनस रूट टू माइनस वन के माइनस उधर दे दो तो प्लस वन भी लिख सकते हो, बट नो इश्यू, आप जिस फॉर्म में लिख रहे हो। अब आपको यहाँ पे चाहिए एग्जैक्टली ग्रेटर देन जीरो, राइट? पॉजिटिव कब होगा वो आपको देखना है। सो डेफिनेटली रूट टू माइनस वन से कोई भी बड़ा नंबर डालूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट? जीरो फिलहाल उसका कोई फैक्टर नहीं है, इन दोनों के बीच में वो नेगेटिव हो जाएगा एंड आफ्टर दैट दिस विल बी पॉजिटिव। इट्स सिंपली योर वेवी कर्व मेथड, isn't it? So here and आपको एक चीज और भी बोलेगी, योर x शुड बी लेस देन वन, तो क्या ये लेस देन वन है? यस, वन यहाँ पे होगा आपका, रूट टू माइनस वन पॉइंट फोर होगा ना, पॉइंट 1.4 1.4। और कुछ बाकी रह रहा है देख लो। एंड सिंस x माइनस वन आपका डिनोमिनेटर में, क्या हम x इज इक्वल टू वन ले सकते हैं? टेल मी, कैन आई टेक x इज इक्वल टू वन? नो, क्योंकि लॉग वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा इनइक्वालिटी में हर बार आपका जो भी आंसर आता था उसमें आप चेक करते थे कि आपका जो लॉग है वो डिफाइन हो रहा है या नहीं। ओके, वो रेंज में आपका लॉग डिफाइन हो रहा है कि नहीं वो आप फाइंड करते थे। तो यहाँ पे लॉग आपका वन पे डिफाइन नहीं होगा, तो वन भी आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी कहाँ पे है? पॉजिटिव वैल्यू इधर इस साइड पे है और इस साइड पे है, तो ये वाला रीजन आप माइनस कर सकते हैं। x बिलोंग्स टू r माइनस, राइट? अब आपको माइनस रूट टू माइनस वन को कंसिडर करना है, नहीं करना है, राइट? तो उसको निकालना है क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं है, और ये रूट टू माइनस वन। ओके, एनीथिंग एल्स? और एक चीज आपको माइनस करनी है, वन पॉइंट, क्योंकि वन हम नहीं ले सकते। ओके, वी कैन नॉट टेक दिस वन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आर में से ये दो चीजें माइनस करनी है। क्यों वन नहीं ले सकते? क्योंकि लॉग आपका डिफाइन नहीं होगा, राइट? इवन वो फ्रैक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो लॉग तो उसके बाद की बात है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इसके बाद 61 कंटिन्यूस में डाउट है, राइट? Number of real solutions of the equation mod x minus 2 to the power x square minus 3x plus 2 is equal to 1 is, okay? चलो अब इसके बारे में हम सोचते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने देखा था शायद, यस। अब मुझे आप ये बताओ कि ये आपका कब हो सकता है, राइट? ये आपका वन, इसका आंसर वन कब पॉसिबल है? यस, या तो आपका ये वन टू द पावर एनी नंबर हो, या एनी नंबर टू द पावर जीरो, राइट? एनीथिंग टू द पावर जीरो, isn't it? एनीथिंग टू द पावर जीरो या वन टू द पावर एनीथिंग हो। तो अगर ये वन टू द पावर जीरो है, दैट मीन्स योर मोड x माइनस टू शुड बी वन, राइट? दिस इज योर केस वन। पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स? If mod x minus 2 is 1, x minus 2 is plus or minus 1.
सो x इज इक्वल टू -2 उधर चला जाएगा, +2, 2 प्लस और -1. ओके, सो x इज इक्वल टू 2 + 1 3 और 2 - 1 1. ठीक है, ये एक आपका पॉसिबल है. नेक्स्ट, अब आपका पावर 0 हो रहा है, दैट इज x² - 3x + 2 = 0. 2 का ऐसा फैक्टर निकालो कि प्लस करके 3 आए. 2 1 2 -2 -1. सो x - 1 x - 2 = 0. सो x आपको मिल रहा है 1 and 2. ओके, सो x आपको मिलेगा आइदर 1 2 और 3, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. राइट, तो यहाँ आपको मिल रहा है 1 और 2 और यहाँ 1 और 3. so अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो विल गेट 1 और 2 और 3. चेक करो, जब आप 1 रखोगे तो 1 - 2 -1 का मोड 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखोगे तो 0, 1 to the power 0 हो जाएगा. ओके, फिर आप 2 रखोगे तो अगेन पावर 0 हो जाएगी, बट 2 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 to the power 0 हो जाएगी. ओके, 1 पे आपका हुआ 1 to the power 0, 2 पे आपका हो गया 0 to the power 0, और ये 3 - 2 1 1 to the power, फिर 1 to the power कुछ भी आएगा चलेगा. 3 स्क्वायर 9 -3 3 9 9 - 9 कैंसिल, 1 स्क्वायर आ रहा है. ओके, सो अब उन्होंने सॉल्यूशन में शायद इसको कंसीडर नहीं किया. हाँ, इन कैलकुलेटर 0 to the power 0 = 1. अच्छा, टेल मी हाउ a to the power x इज डिफाइंड. जब सबसे पहले लॉगरिथम पढ़े थे, राइट, b = a to the power x. व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस? या अगर आप लिख रहे हो x = log b base a, तो ये ज्यादा याद होगा आपको. b greater than 0, a greater than 0, a is not equal to 1. यस और नो? b और a आपका पॉजिटिव होना चाहिए. सेम चीज ऐसा फंक्शन अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, राइट, वो तो लॉग के लेके पॉजिटिव होगा. ओके, ठीक है, आई विल चेक अबाउट दिस 0 to the power 0. सॉल्यूशन में आपको दिया गया है कि बिकॉज बेस b a to the power x will become 0. yes, 0 to the power 0, it is it defined or not? so I will check that. तो मैं लिख रहा हूँ माई चेकलिस्ट में. हाँ, लिमिट में आपने पढ़ा था 0 to the power 0, बट वो एक्जेक्टली एक आपके वेरिएबल का फॉर्म था, राइट. देखो, लिमिट में जो आप पढ़े हो, राइट, मैं देखूंगा, क्योंकि वो आपका एक वेरिएबल का फॉर्म होता है, राइट, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, आई विल चेक एंड आई लेट यू नो 0 to the power 0 उसको इंक्लूड करना है या नहीं. ओके, डेफिनेटली इट शुड बी नॉट डिफाइंड, बट अगेन आई विल चेक, क्योंकि हर्षा ने कैलकुलेटर में चेक किया तो आपको क्या दिखाया हर्षा? 0 to the power 0 1 दिखाया. ओके, हाँ, ठीक है, आई विल चेक. क्वेश्चन 61 हो गया, उसके बाद शायद 63 में डाउट है, राइट. दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 61. नेक्स्ट 3 4 5 6 3 4 5 3 के बाद 4 5 6 कंटिन्यूस. ओके, या 3 4 5 कंटिन्यूस है ये सब. 63 64 65 66 4 क्वेश्चन हैं, और हमारे पास 17 मिनट्स हैं, 4 मिनट्स पर क्वेश्चन. अच्छा, तो मनोज का कैलकुलेटर दिखा रहा है मैथ एरर. मनोज, आपने कौन सा कैलकुलेटर यूज किया, और हर्षा आपने कौन सा कैलकुलेटर यूज किया?
ओके, मनोज इज हैविंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। ओके, तो मनोज आपके कोई भाई बहन है क्या इंजीनियरिंग में? साइंटिफिक कैलकुलेटर कहाँ से मिला? ओके, ठीक है, आई विल चेक इन साइंटिफिक कैलसी। मेरा भी साइंटिफिक कैलसी यही है। ओके, वो घर में है तो आई विल चेक। ओके, अच्छा किया। चलो चलो इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 63 एवरीवन। If the matrices A, B, A plus B are non-singular, what do you mean by non-singular? सबसे पहले non-singular means उनका determinant not zero है. Determinant of A is not equal to zero. Determinant of B is not equal to zero. Determinant of A plus B is not equal to zero. Right. If they are non-singular means their inverse is also exist. A inverse exists. B inverse exists. A plus B whole inverse exists. Okay, वो पूरा आपका exist कर रहा है. Next. Then matrix which is A plus B inverse into B whole inverse is. ओके, तो देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको एक ही रूल पता है, राइट? यू नो दैट A इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और नॉट। ये आपको ए बी सी होल इनवर्स दे दिया है। तो आप पहले इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कोई भी दो को पहले साथ में रख सकते हो, राइट? सपोज आप इसे मान रहे हो ये आपका A इंटू बी है, राइट, और ये आपका C है। सो या आपका ये पूरा कैपिटल A है, सपोज अभी स्मॉल नाम दे रहा हूँ, वैसा नहीं दे सकते। सो A इंटू बी होल इनवर्स शुड बी B इनवर्स A इनवर्स। तो B इनवर्स आपका होगा B इनवर्स और A इनवर्स आपका होना चाहिए A इंटू A प्लस B इनवर्स होल इनवर्स। B इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे अंदर वापस इनवर्स दे दूंगा तो इट विल बी और A प्लस B होल इनवर्स इनवर्स, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, इंटू A इनवर्स। isn't it? Tell me. Please give me some response. Right. चलो अब कोई भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट साइड से, वो ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर आप इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए इनवर्स प्लस बी ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स विल गिव यू आई प्लस बी इंटू ए इनवर्स। ओके, बी इनवर्स लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हो तो बी इनवर्स इंटू आई बी इनवर्स प्लस बी इनवर्स इंटू बी ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू बी इज आई, so it is b inverse plus a inverse. Okay, this is your answer. B inverse plus A inverse is equal to A inverse plus B inverse, option B. Is it clear? 63. अरे 4 मिनट बोला था, 4 मिनट में खत्म हो गया लकीली। 64 क्वेश्चन नंबर। Now see here question number 64 students. Let A and B be a 3 by 3 matrices of real numbers. Right, A and B आपके 3 by 3 matrices are real numbers where A is symmetric, B is skew symmetric. Okay, A आपका symmetric है, B आपका skew symmetric है. And A plus B, A minus B is equal to A minus B, A plus B if AB whole transpose hello, yes. So I have lost you due to this net issues, but I think now you can hear me, right? अब इतना अच्छा प्लान ले लिया, नया लिया, फिर भी उसमें कभी कभी नेट का हो जाता है, नो इश्यू. Just a minute. Yes. Okay, students, tell me here
चलो हम ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. Let A and B be a 3 by 3 matrices of real numbers where A is symmetric, B is Q symmetric, and A plus B into A minus B equal to A minus B into A plus B if AB whole transpose, if A into B whole transpose is equal to minus 1 to the power k into AB, where AB whole transpose is the transpose of matrix AB. वो तो पता ही चल रहा है. Okay. Then minus 1 to the power k AB, and k is an integer, then the possible values of k are कि k आपका कोई भी नंबर के लिए ट्रू है, कि सिर्फ इवन नंबर्स के लिए ट्रू है, कि ऑड नंबर्स के लिए ट्रू है, कि इट इज नॉट पॉसिबल. लेट अस चेक दैट. तो जो आपको दिया उसको सिंप्लीफाई करते हैं. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस स्टेप बाय स्टेप. सो एंड आपको ये भी दिया ए सिमेट्रिक एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक. ए सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज क्या होगा ए, एंड बी ट्रांसपोज क्या होगा माइनस बी. इतना पहले क्लियर? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, and skew symmetric matrix B transpose is equal to minus B. So here A plus B into A minus B, this will give you A square minus AB plus BA minus B square. ये आपको देगा A square plus AB. This will give you minus BA plus minus minus B square, isn't it? So A square and A square are same, minus B square are same on both the sides, exactly plus हो जाएंगे. So here on right side I am having AB, left side minus AB will go to that side, it will become plus AB. Here on left side I am having BA, right side से minus B इधर आ जाएगा, तो it will be a plus BA. So 2 times BA is equal to 2 times AB. Okay, 2 times BA आपका 2 times AB हो जाएगा. So 2 cancel, I can say AB equal to BA. If BA equal to AB, अब आपको क्या पूछ रहे हैं? AB whole transpose, right? So if I apply transpose on both the sides, या कोई भी कहीं से भी आप शुरू करो. So if I apply here BA whole transpose is equal to AB whole transpose, can I do that? Right, transpose दोनों जगह दे सकता हूँ. Okay. या अगर आप पहले कोई भी एक जगह का पहले आप सिंप्लीफाई कर दो, फिर उसको कंपेयर करो. सो B इंटू ए होल ट्रांसपोज, अब जैसे इनवर्स में आपका कहाँ से आया था, मैंने आपको दिखा था, वो यहीं से आया था कि आप इसे A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज लिख सकते हो. दैट्स व्हाई इनवर्स में आपका वो चेंज होता है. Now according to question, A transpose is symmetric, so A transpose is equal to A. B transpose is minus symmetric, so it is minus B. So if I put this value, so therefore B into A whole transpose, it should be A minus AB. उसका ट्रांसपोज होना चाहिए माइनस AB. ओके, अब इसकी जगह आप वैल्यू को चेंज कर दो, राइट? BA की जगह आप AB लिख दो, विच वी गॉट ऑलरेडी. सो AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस AB. अब इसे आपको जो दिया उससे कंपेयर करो, तो डेफिनेटली माइनस 1 की कौन सी पावर होगी? ऑड. सो आंसर शुड बी सी. माइनस 1 की ऑड पावर आपको ऑलवेज मिलेगी माइनस 1. ओके, 64 क्लियर? आई थिंक नाउ लास्ट क्वेश्चन 65 की और दो हैं, 65 66 हैं. 65 66 दो. ओके, लेट अस फिनिश देम क्विकली. Oh, sorry, I lost. और कल बहुत टेंशन में आ गए थे एमटी की वजह से स्टूडेंट्स. होता है, दिस इज लाइफ. डोंट वरी, मुझे भी आप लोग को देख के मेरे एग्जाम वाले दिन याद आ गए. तो वो है, वो रहेगा. ओके, जब तक मेरी लास्ट एग्जाम खत्म नहीं हुई वो था एमटेक में, जब चलते थे एग्जाम्स, तो अभी फ्रेंड लोग से बात करते हैं तो वो वही वही दिनों को याद करते हैं कि एग्जाम टाइम पे क्या होता था. बट डेफिनेटली चलो, एजुकेशन सिस्टम चेंज होगी, जब आप कॉलेज में जाओगी तो काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी. लेट अस सी. ना
So if determinant of x plus a, x plus b, x plus c, a square, b square, c square, a cube, b cube, c cube, if I read them column wise. Okay. I have doubts in integer type as this was of 300 marks empty. Okay. And a is not equal to b is not equal to c, then x is equal to. चलो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स का एडिशन वाला आप कर सकते हैं. ओके, एडिशन में पहले ये दूर कर सकता हूँ. टेल मी कैसे दूर कर सकता हूँ? कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, हाँ या ना? राइट, ये हमने देखा था स्टूडेंट्स. ओके, ये फटाफट ये पहले वाइट पार्ट हटा लो तो आप अच्छे से देख पाओ. चलो, नाउ नेक्स्ट. अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं? फ्रॉम दिस फर्स्ट कॉलम कैन आई टेक एक्स कॉमन? 1 1 1. मतलब हर्ष आप आज के टेस्ट के बारे में बात बता रहे हो? इंटीजर टाइप क्वेश्चन में डाउट थे? अच्छा, उसमें मतलब क्या हुआ? मतलब वो ये 300 वाले में आपको ऑप्शन दे रहे थे कैसे इंसर्ट करना है लाइक दिस. टुडे इट इज नॉट पॉसिबल. ओके ठीक है. हाँ, वो आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो पार्ट टेस्ट का ही होगा. डोंट वरी, वो एमटी का डिस्कशन नेक्स्ट संडे हो जाएगा. ओके ना, चलो अब यहाँ पे अगर मैं ए बी सी कॉमन निकाल रहा हूँ, कैन आई टेक फ्रॉम फर्स्ट रो ए एस कॉमन, फ्रॉम सेकंड रो बी एंड फ्रॉम थर्ड रो सी. सो इट इज 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर. अच्छा, पार्ट टेस्ट का ही. ओके, पार्ट टेस्ट के इंटीजर टाइप का, ठीक है, नो प्रॉब्लम. वो कोई और दिन डिस्कस कर लेंगे, नो इश्यू. चलो, ये 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, क्या इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ? ये दोनों में सेम है. ओके, या दोनों में हम सेम चीज भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर. व्हाट इज योर एम? हमें फाइंड क्या करना है? एक्स. और आपको दिया ए बी सी आपके सेम नहीं है. वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स. चलो, और ये डिटर्मिनेंट आपका 0 दिया है. ओके, लेट अस सी. सो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बी सी. हाँ या ना? क्या ये कॉमन ले सकता हूँ? नहीं, अलग है ना, दोनों अलग है. मैं भी क्या बोल रहा हूँ. वी कैन अप्लाई सारस रूल. यस, सारस रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट सारस रूल अप्लाई करने से पहले आपको याद होगा कि 1 1 1 3 बार 1 दिख रहे हैं, तो मैंने आपको एक रूल दिया था. क्या एक 1 की मदद से बाकी के 2 1 आप 0 कर सकते हो? ओके, जस्ट से यस. सो 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 ए स्क्वायर. इसे कर देता हूँ मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब दो ऑप्शन है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करें. ए के फॉर्म में ही रखते हैं. ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए बी सी 1 ए स्क्वायर 1 माइनस 1 0 बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या सी माइनस ए कर देते हैं. नाउ सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज एक्स. अब ये 1 से आप डायरेक्ट कर भी सकते हो, बट उससे पहले आप कॉमन भी निकाल सकते हो. तो b माइनस ए आपका कॉमन निकल जाएगा फ्रॉम सेकंड रो, एंड c माइनस ए कॉमन निकल जाएगा फ्रॉम थर्ड रो. 1 0 0 ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा b प्लस ए सी प्लस ए, यहाँ थोड़ा लंबा बचेगा. ए क्यूब बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी सी अगेन b माइनस ए कॉमन c माइनस ए कॉमन. अब यहाँ आपका हो जाएगा 1 ए स्क्वायर 0 1, ये आपका हो जाएगा b प्लस ए 0 1, ये आपका हो जाएगा c प्लस ए. ओके, फिर आप अब डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, या और इनको भी आप पहले सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ये 1 माइनस 1 आप 0 कर सकते हैं यहाँ पे ये और आसान हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 1 की मदद से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे इसको एक बार और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे.
तो ये आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो ये सी माइनस बी बचेगा, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपका सी माइनस बी ही आने वाला है। ओके, बिकॉज लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आई होप आपको याद होगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप x को उस तरफ ले जाओगे, सिंस दिस ऑल होल वैल्यू इज जीरो, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ x। ओके, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, वो आप घर पे ट्राई करना। यू विल गेट माइनस ए बी सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, ओके, और यहाँ पे विष्णु नहीं है आज, आज कम स्टूडेंट्स हैं, आई विल टेक अटेंडेंस टुडे, कम स्टूडेंट है इसलिए। ओके, सो इसमें जब आप ये सारी वैल्यू रखोगे, या ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हो। ओके, ए बी सी की वैल्यू रख, बट दैट इज रिस्की, क्योंकि उसमें आप ट्रायल एरर करो और फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो ऑप्शन में आपका सेम आंसर है। ओके, नाउ सो फर्स्ट लेट मी टेक योर अटेंडेंस। ओके, तो आज के लिए आई थिंक इतना क्लियर है। सैटरडे क्लास में भी विष्णु नहीं था। लगता है एमटी का टेंशन ले रहा, अभी एमटी दी नहीं होगी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, वो बोला था वो तो आउट ऑफ स्टेशन रहेगा, राइट, वो पहले ही बोल दिया था। एग्री एग्री एग्री, विष्णु इज आउट ऑफ स्टेशन, यस। सी स्टूडेंट्स, नो पेन नो गेन, राइट, तो एमटीआई उसका टेंशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, राइट, इट इज नॉट इजी। तो वैसे ही छोटे छोटे प्रेशर अभी ले लोगे तो लाइफ में फिर बड़े प्रेशर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, वो झेलने की आदत आ जाएगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली योर रियल लाइफ। ओके, चलो मैं टेस्ट डिस्कशन सेशन आज का डाल रहा हूँ। टेस्ट डिस्कशन सेशन फ्रॉम 5:30 डाल देते हैं, राइट, 5:20 15 हमने शुरू किया था। ओके, ये टेस्ट का आपका कोड कौन सा है, जस्ट अ मिनट। SBMT 1319A। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।